थोड़ा हंसी मजाक भी हो गया, पढ़ाना भी हो गया, और मतलब सबके चेहरे पे स्माइल देखिए। ये जो स्माइल है ना, ये तभी आएगी जब हैंडपंप के पानी से नहाओगे। दिस इज प्लेन। जो हम बात करते हैं, खूब पढ़ते हैं कि प्लेन एक होता है, वो प्लेन ये होता है। सारा ध्यान उंगली पर, सारा ध्यान उंगली पर। क्या पीछे की दुनिया ब्लर हो गई? यस यस। क्या ऐसा लग रहा है कि इधर कोई हीटर चल रहा हो? लग रहा है? जो इस लाइन में बैठे हुए हैं सब जरा से देखो, लग रहा है? ये है नेचुरल तरीका किसी भी घर और मकान को गर्म करने का। We live in a society explicitly dependent on science and technology, in which hardly anyone knows anything about science and technology. With this quote, I welcome all the guests, participants. A warm welcome to our principal of Satyam College of Education, Dr. Vinita Agrawal, head of the department, Ms. Preeti Goyal, and my versatile colleagues. A warm welcome to one and all present here. I, Ruby Tyagi, Assistant Professor, Satyam College of Education, welcomes you all to the 5 days workshop on low-cost science teaching aids in collaboration with Pragati Vigyan Sanstha, catalyzed and supported by National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, Government of India, from 6th to 10th January 2022. Fighting against all odds, we have got this privilege to organize and be a part of this great learning venture. Light is a symbol of brightness and prosperity. As sunlight expels the darkness of night, similarly, blessings bringing prosperity and happiness in our life. To make this day a blessed one, let's invoke Goddess Saraswati by kindling the lamp of knowledge and wisdom. For that, I would like to request all the dignitaries on the dais to come up for lamp lighting. So that we can smoothly conduct this 5 days workshop. To conduct this workshop, we have people from Pragati Vigyan Sanstha, and let's know a little about this Sanstha. The organization was started by a group of science enthusiast students in 1984 as a vision to change the society's perspective of science and develop scientific temperament in the society. They work towards making science easy to comprehend for better understanding by the society and to encourage the society to see the world through the scientific lens. However, the organization was formally registered on 4th of June 2009 by the then Mayor of Meerut, Ms. Kamini Ratan Chauhan. She was impressed by the kind of work the organization had been doing and wanted to make it the culture of the society. After the formal registration in 2009, the organization has come a long way from conducting science awareness programs to hosting a number of science events. The organization has been hosting a science-based web channel by the name Vigyan Aao Karke Seekhein since 2013. The channel is running live 24/7 since 2016. It features various science-based documentaries, films, hosts live science events, interviews of famous scientists and educationists, and broadcasts the live science events and news from around the world. The channel has 1.8k subscribers and has the viewership of around 1,000 per day. A big round of applause for that achievement. The organization has also been publishing a monthly magazine with the name Vigyan Aao Karke Seekhein since 2015. The magazine features articles on science-based information and researches from authors around the country. The magazine has subscription base of more than 1,000 readers countrywide.
Another unique characteristic of the organization is the world's first science-based reality show, Vigyan Ghar. So it will be very, very useful for students who are opting for science and mathematics especially. The show houses the most creative students selected from across the country who are put together to solve the nation's problems with the scientific outlook. Other details of the show are there if you visit the website of it. Besides these, the organization has been closely working with the Council of Science and Technology, Uttar Pradesh, and the Department of Science and Technology, Government of India from past 30 years. Organization has also trained around 200 resource persons who have performed at national and state levels across the country. We have been participating in India International Science Festival since its conception and Indian Science Congress. Organization has also been awarded with Rajendra Prabhu Memorial Award for Science Popularization 2020, Department of Science and Technology, Government of India for its outstanding work in science communication, popularization and extension activity. So this was a little about the contribution of this organization, and this organization is working much more than this what I have defined. So a big round of applause for the organization. So to conduct this workshop, we have eminent people from the department of this Sanstha. We have Mr. Deepak Sharma, who is General Secretary of this organization. A big round of applause, and I really welcome you, sir. And also with him, we have Miss Manvi, technical expert, who is right here. And she's doing her job wonderfully as a technical expert. So now I would like to request our principal ma'am to felicitate sir with a planter. A physics expert, and he has his contribution when it comes to light experiments. So a big round of applause for sir. I would like to request our principal ma'am to come up on the stage and address us all with her motivating words. Thank you, Ruby. Very good morning, all dear participants. Good morning. Very good morning. So we are here with full pleasure. I invite and welcome Deepak Sharma sir, Vipul Sharma sir, and Mansi or Manvi? Manvi. For this particular low-cost teaching aids session. This is really a good effort which sir is going to do with you. Dear girls, as we were discussing yesterday, portfolio file with you all. So you will remember that we are just getting ready for the whole school, not for one class or two class, right? So in that direction, it will contribute too much for your life, that how in limited resources you can create teaching aids, because you must be remembering in your school days or in college days, whenever you did certain practical, it always keep in your mind forever. So whenever you are doing some practical form, and most of the time when you do not have equipments or particular apparatus in your hand, and you feel that you are not able to do that particular practical in your class, but if you have ideas of improvisation in your mind, then you can do this practical anywhere at any place. So I believe when you attend sir's session, you will have many more ideas in your mind to conduct your classes practically. And it will help us in our micro teaching, integration and your internship in schools. That will also help you. And I welcome all the participants from outside colleges and schools as well. I welcome you all and attend the function and learn so many things from sir. Welcome you, sir, for taking out your important time and giving this opportunity to us to understand this low-cost teaching aids, to understand it more beautifully from sir. Thank you very much. सभी के पास 3 T होते हैं. टैलेंट, सभी के पास होगा कोई ना कोई टैलेंट. टेम्परामेंट, सभी के पास अपना टेम्परामेंट होता है, किसी पे अच्छा होता है, किसी पे बुरा होता है. और टेक्निक, सभी टीचर्स के पास भी टेक्निक होती है, और शायद जो चीजें मैं कराऊंगा वो आपको पहले से पता होंगी, लेकिन शायद मेरी टेक्निक आपसे अलग हो,
आपको कुछ सीखने को मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि हमको कुछ सीखने को मिले आप लोगों से, क्योंकि आपकी टेक्निक के तो हमें उस चीज का ध्यान रखना होता है। और एक बात और ध्यान रखना है, हमको अपने बच्चों में 3 D डालने हैं, और वो 3 D हम तभी डाल पाएंगे जब हमारे अंदर होंगे। डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। डेडिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर डिसिप्लिन रहेगा तो धीरे धीरे वो भी आएंगे ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमारा टॉपिक है लो कॉस्ट साइंस टीचिंग एड्स। अब लो कॉस्ट कहना ज्यादा सही है, या फिर हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी कह सकते हैं। बहुत सी चीजें आपको फ्री कॉस्ट भी मिलेगी। आइए एग्जाम्पल के तौर पे, आप में से कितने ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनकी आंखें ठीक है, आंखें उनकी बढ़िया बेहतरीन है, आपकी ठीक है? अच्छा, लगता है, चलिए है, थोड़ी देर में ऐसे चलेगी है, लगता है बारिश होने वाली है, अंधेरा हो गया। चलिए आप आइए, आप मैडम ने सबसे पहले कहा था आपने, हाँ जी मैडम, इन्हें लगता है कि इनकी आंखें ठीक है और हो सकता है ठीक होगी। आप इधर आइए, आपका नाम क्या है? मनोरमा, ठीक है। मनोरमा जी को लगता है कि इनकी आंखें ठीक है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा इससे इधर आ जाइए, आपका रेंज कितना होगा, बात करेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखेंगे आप लोग सभी, चलिए ये मेरे पास एक पेंसिल है और मैं मनोरमा से कह रहा हूं, और ये कर रही, ठीक है, तो को नहीं उड़ानी आपको, ठीक है, बस कुछ नहीं करना आपको। इस पेंसिल की जो निब है, या मैं पेन पकड़ लूं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा उससे, पेन से आपको हाथ दूंगा पेंसिल से। अब ये मनोरमा जो है अपने हाथ से, इनके खुद के हाथ है ना, मैं इनसे पेंसिल दूर ले जाऊंगा ना मैं पेंसिल के पास लाऊंगा, मैं पेंसिल को एक जगह स्टेबल कर दूंगा। मनोरमा खुद इस पेंसिल को टच करके देखेंगी, लेकिन टच करने का रूल क्या है, ये ऐसे टच नहीं करेंगी, इनको सिर्फ अपनी पहली जो उंगली है, फिंगर है, इसको लाना है और ऐसा बस यहाँ पे ऐसा लगाना है। ऐसा नहीं कि आगे पकड़ में अब लगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आंखें ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अपनी एक आंख पे अपनी हथेली रखेंगे, ठीक है, हथेली। क्यों, क्या है ना हथेली, क्यों उंगली में से बच्चा देख लेता है ऐसे करके, इसलिए हथेली रखवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया। बच्चे लोग कहते सर हमने देख लिया था, तो मैंने हथेली का यूज कर लिया, ठीक है, थोड़ा जल्दी। अब ध्यान से देखिए, मैं पेंसिल रख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। अब ध्यान से देख लें, अब इस आंख को भी बंद करिए, अब खोलिए, और आप वैसे ही टेक्निक से आपको इसमें करना है। देखो नहीं पहुंची, सही पहुंची भी तो आगे पहुंची, एग्जैक्टली वहां नहीं पहुंची, इसका मतलब इनकी आंख में दिक्कत है, ठीक है। जाइए बैठिए। अब सोचा क्यों हुआ, कोई सोच सकता है इसके बारे में? आप में से बहुत से साइंस से जुड़े हुए हैं। अब या तो इनकी आंख में दिक्कत है, अच्छा मिड में बताती चीज, ठीक है, टीचर बोल रहे हैं आपके, आप में से कोई बोलिए। नहीं कोई बात नहीं, देखो सर ने बोला था ना सभी पे साइंस है। मैं आपको बात बताऊं, आप में से कितने बच्चे या टीचर्स ऐसे हैं जिनके दादा दादी परदादा ने फिजिक्स पढ़ी है? फादर ने पढ़ी है, दादा परदादा नहीं पढ़ी। और बहुत से आपने देखे होंगे कारपेंटर, वो फिजिक्स पढ़े हुए तो नहीं होते, लेकिन उनको पता है कि मुझे जो हैंडल लगाना है दरवाजे पर वो इधर लगाना है, वो इधर नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? आप खुद इसे फील करके देखेंगे, अगर मैं यहां से इसे बंद करता हूँ, ये ब्रेकर लगा रखा है, आप खुद फील करेंगे घर पे अपना, ये स्प्रिंग लगी है इसमें स्प्रिंग नहीं होगी, इसको आपको फील करेंगे। पता है क्यों लगाते हैं? ये कॉन्सेप्ट हमारे दादा परदादा को, क्योंकि अब दादा परदादा दादी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पुराने जमाने में एक चक्की होती थी, क्या पीसने की? अलग गेहूं पीसने की, पीसे और पीस दो, गेहूं पीसने की होती थी, ठीक। तो उसमें जो हैंडल होता है वो बाहर ही रखते हैं, तो इसका मतलब उनको फिजिक्स आती थी। उन्होंने कभी किताबी लैंग्वेज में नहीं पढ़ा, लेकिन उनको आती थी। और ये 11वीं क्लास का टॉपिक है, 11th क्लास का टॉर्क, ठीक है। सेम यहाँ पर बड़े को भी नहीं आती, लेकिन उसे आती है, पढ़ी नहीं है। सेम मैं कह रहा हूं, एक छोटे बच्चे को भी फिजिक्स आती है, एक छोटे बच्चे को भी। उस छोटे बच्चे को पता है कि अगर मैं भागता भागता गया दीवार पर से मारूंगा, मारता थोड़ी हूं। उसे पता है न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है,
आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो कहने का मतलब है, अब जो मैडम भी बोल रही थी कि दोनों आंखें बैलेंस करती हैं, आप में से किसी और को भी जवाब है? कोई देना चाहेगा दे सकते हैं, जवाब जब देंगे गलत होगा तो वही सही कर सकता है। हाँ जी बोलिए आप। सर दोनों आइज की इक्वल विजिबिलिटी पावर नहीं होगा। अच्छा, उससे क्या होता है? दोनों आइज में डिफरेंस विजिबिलिटी पावर होता है। नहीं कोई बात नहीं, देखो आपका सही है। और कोई बोले? क्योंकि हमारा ना उद्देश्य ये है, अब आप लोग जैसे इन फ्यूचर अगर टीचर बनेंगे, या फिर यहाँ बहुत से टीचर बैठे हैं, अगर वही नहीं बोलेंगे तो कैसे अपने स्टूडेंट से ये रखेंगे कि बच्चा बोले? जब हम ही चुप बैठे हैं ऐसे करके डर के मारे कि नहीं हो रहा, गलत होगा तो क्या होगा, ऐसा अगर हम ही सोच रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे? आप जवाब दीजिए, गलत है सही है वो कोई बात नहीं, सभी का ठीक होता है। हाँ जी आप कुछ बोल, अच्छा अपना वो करने लगा कि मैं, हाँ मैम आप बोलिए। सर मे बी ये जो दोनों आइज होती हैं, किसी भी चीज के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड होते हैं, तो अगर हमने एक क्लोज किया तो अभी तो दोनों आइज बराबर बैलेंस करके देखती है, हमने एक क्लोज कर दिया तो सारे का सारा जो वर्क ही एक आइज है, तो मे बी उसी रीजन से इधर का होगा। चलिए अब मैं आपको एक बात बताऊं, बैठिए। क्या नाम था उनका? हाँ मनोरमा। अभी मनोरमा ने जो किया था, आप मनोरमा से पूछिएगा, या आप अपने घर पे अपने फ्रेंड्स अपने मम्मी पापा से भी करके देख सकते हैं, या आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। जब मनोरमा अपनी उंगली को पेंसिल के पास ले जा रही थी तो वो इधर या उधर नहीं ले गई थी, वो आगे पीछे ले गई थी। नोटिस करें इस बात को। अगर हम कहते हैं कि हमारी एक आंख ये दिखा रही है, दूसरी ये दिखा रही है, फिर कंबाइंड दिख रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन मनोरमा जब पेंसिल के पास अपनी उंगली ले गई थी तो उस सीध में ही थी, हाँ या ना? अब थोड़ी इधर क्या उधर गई, आप करके देखेंगे अभी इसको। तो हुआ क्या, इसे कहते हैं डेप्थ। हमारी आंख डेप्थ नहीं पता लगाती। एक आंख हमें देखिए 2D व्यू, 2 डायमेंशनल, लेंथ एंड ब्रेथ। सिर्फ हमको लेंथ का पता चलेगा, अगर हम एक ही आंख से देखेंगे लेंथ और ब्रेथ हम फाइंड कर सकते हैं, डेप्थ हम फाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी 2 आंखें हैं और 2 आंखें हमको देखते हैं 3D व्यू। अब किसी भी जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसका 3D व्यू होने से आपको अंदाजा रहता है कि कहां उठाना है कहां नहीं उठाना है। काफी लोग, अब हम लोग गेम भी खिलाते हैं बच्चों को, अभी शायद आपको सर भी कराएंगे कल या आज में, वो भी आप देखेंगे, वो सब इसी पे बेस्ड है। 2 आंखें देती हैं 3D व्यू, एक आंख देती है 2D व्यू। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अब ये आंख वाला टॉपिक बायो में भी हो सकता है, ह्यूमन आई 12th में है टॉपिक, है ना? अब मैं आपको बताता हूं, जब हम देखते हैं, अगर मैं सीधा खड़ा हूं तो मैं यहां का देख पा रहा हूं, है ना? भले ही मेरी नजर सामने, लेकिन मुझे यहां का दिख रहा है हलचल की, यहां कुछ हो रहा है, और मुझे यहां का भी दिख रहा है। अगर मैं इस पूरे एंगल को मेजर करता हूं यहां से लेके यहां तक, तो 180 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू होता है। इसलिए हम लोग को इतना दिखता है, पीछे का नहीं दिखता। मक्खी को, खरगोश को दिख जाता है। खरगोश को आपको पता है एक बात, खरगोश को उसके सामने का नहीं दिखता। हाँ बोलिए बोलिए, क्या? उसके साइड का दिखता है क्योंकि उसके आइज से साइड में। हाँ बिल्कुल, इसीलिए जो घोड़े होते हैं, है ना, टांगला चलता है तो उसमें आप कुछ लगाते हैं ताकि वो इधर उधर ना देखे, उसकी नजर यहाँ से तो ब्लॉक होगी, सामने दिखे। तो ये सब रीजन है। 2 आंखें हमको देती हैं फील्ड 180 डिग्री का। अगर मैं एक ही आंख से देखता हूं और आप देखिए अपनी एक ही आंख से, गर्दन सीधी रखिए, एक आंख से देखिए और सोचिए ये एंगल कितने का बन रहा होगा। 90 बन रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ का मुझे दिख रहा है, यहाँ से 90 तो यहाँ पे होता ना, 90 से ज्यादा क्या 180 है? ये लगभग 150 होता है, और एग्जैक्टली 150 होता है ह्यूमंस के लिए। वेरी कर सकता है आपकी आंखों से, मान लीजिए किसी की आंख में कुछ दिक्कत है तो बात दूसरी है। इसका 150 आया, ऐसे ही इस वाली आंख का देखोगे ये भी 150 आया। बीच में जो ये रीजन है ना, ये कॉमन फील्ड ऑफ व्यू है दोनों आंखों का, जो बात मैडम बोल रही थी। और इससे अभी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होने वाली है, ठीक है? चलिए, ये तो बात थी आपकी आंख की। तो इसका मतलब ये है कि आपकी 2 आंखें आपको कौन सा व्यू देती हैं? 3D, एक आंख देती है 2D। ये कह के हम बच्चों को, क्योंकि हम लोग क्या है ना, अब हम लोग हो गए एक तरीके से बूढ़े होते जा रहे हैं और हमारी सोच पुरानी है। अब जो नई जनरेशन आएगी उनको हमने शुरू से नई सोच डाल दी है, क्या कि बेटा इन फ्यूचर जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे हम अपनी आई डोनेट करेंगे। क्योंकि सोचो, जो व्यक्ति जिसके पास एक ही आंख है उसका जीवन कितना मुश्किल भरा है। आपको तो पता है कि बोतल का ढक्कन यहाँ पर है,
है ना। लेकिन जो एक आंख वाला यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा, जैसा अभी लड़की के साथ हो रहा था, मनोरमा के साथ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस तरीके से हम बच्चों में एक मोरालिटी डाल सकते हैं, नैतिकता डाल सकते हैं कि वो सोचें अपने समाज के बारे में। ऑलराइट, समझ में आया 2D 3D का फर्क क्या है? चलिए अब मैं एक और जादू कराता हूँ। जादूगर आए हैं, चलिए टोपा तो नहीं है सर आपका बड़ा सा। आप लोग सभी ने देखा है, वैसे फोटो का शौक लड़कियों को ज्यादा होता है, लड़कों को भी होता है। मैंने देखे अपने साथ के दोस्त वो पटरियों पर बैठ के फोटो खिंचाते हैं, भैया ये तो पीछे ब्लर कर दे, आगे मैं अच्छा दिखूं, है ना। बहुत सारे अलग अलग पोज में खिंचाते हैं, और आप भी खिंचाते हैं। शादियों में देखा होगा बढ़िया कैमरे लाए हैं, अरे कई हजार का कैमरा, लाखों कैमरा है, और फोटो खिंचा रहे हैं। अब वो दूल्हा दुल्हन की फोटो खींच रहा है, कभी तो दूल्हा दुल्हन तो फोकस में, पीछे सब परिवार वाले गायब कर दिए, जो असली काम तो इनका है, पैसे तो यही देगा है। और फिर कई बार क्या होता है, वो उन्हीं को ब्लर करता है, पीछे का दिखाता है कि फैमिली को भी लिख दूं, कभी लड़ने लगे बाद में। इसका मतलब DSLR काम करता है इस प्रकार, देखा है आपने? हाँ, कौन बोला? कोई बोला यहाँ से? क्या बोला? फोकस चेंज करता है। वेरी गुड। आप लोग सभी अपनी उंगली को ऐसा सामने रखेंगे, ऐसा अपनी देखनी है, मेरी मत देखना। मैम आप भी कर लीजिए, मजा आया। अब जिसके चश्मे हैं वो भी कर सकता है, हालांकि वाली एक्टिविटी भी सब कर सकते थे। ऐसे रखिए उंगली अपने सामने, सारा ध्यान उंगली पर लगाइए, सारा ध्यान उंगली पर, सारा ध्यान उंगली पर। क्या पीछे की दुनिया ब्लर हो गई? यस सर। अब सारा ऐसी रखिए, ऐसी रखिए, ऐसी रखिए, सारा ध्यान पीछे लगाओ। क्या उंगली ब्लर हो गई? यस सर। यही तो करता है कैमरा, DSLR। और क्या ये हमने आज से पहले करके देखा था? नहीं देखा था, तो इसका मतलब हमको, हाँ आपने देखा था। सिर्फ बचपन में ऐसे ऐसे करके इधर आई गेम होता था ना, हाँ। कि मैं एक आई इधर कर देता हूँ, एक आई यहाँ पे हाँ, हाँ, कांस्टेंट, फिर देन इसे एकदम कांस्टेंट करके फिर एक आई इधर, तो गेम खेलते थे। ठीक ठीक, वेरी गुड। ज्यादा मत खेलना इस गेम को, पता नहीं आई ऐसे हो गई। हाँ? फिर आप भी खरगोश की तरह हो जाओ, आगे से दिखे नहीं, साइड को कर देगी। तो चला घर वाले लगा रहे हैं, वो घोड़ों की तरह आगे चलिए। चलिए खैर, अच्छी चीज है कि ये करती थी एक्टिविटी, और ये मुझे एक्टिव लग रही है, ये एक्टिव लग रही है मुझे बातों से। तो ये चीज होती है, हम लोग 10th वाले में भी पढ़ाते हैं, 12th में पढ़ाते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। हम लोग बच्चों को लिखा देते हैं, बच्चे लिख लेगा, बच्चा याद कर लेगा, समझ में थोड़ी आया उसको। अब बात यह है कि हमारी आंख में लेंस होता है जो फोकस को बार बार चेंज कर रहा है। क्या ऐसे लेंस होते हैं? अगर आपने लैब्स वगैरह में लेंस देखे हैं, तो लेंस तो एक कांच का है ऐसा, उसकी फोकस तो चेंज नहीं होगी। और आपने पढ़ा है ये कि हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, जेली टाइप होता है, उसको आप दबा भी सकते हैं और रिलैक्स भी कर सकते हैं। और यही रीजन है, जब हमारे आंखों को पकड़ के, जैसे लेंस है मेरा तो है ही ये लेंस है, ये हवा में तो नहीं टंगा, इसको टांगने के लिए, पकड़ने के लिए ये चीज क्या है? ये फ्रेम। ऐसे ही हमारी आंख में जो लेंस होता है उसको पकड़ने के लिए होती है स्लेरी मसल्स, होती है ना। अब लेंस हमारा सॉलिड नहीं है, लेंस है हमारा थोड़ा लिक्विड टाइप, जेली टाइप। तो जब ऑब्जेक्ट पास में है, फोकस पास में है, तो वो दबा देती है, ले भैया, और जब दूर देखना है तो उसे रिलैक्स कर देती है। इस प्रकार इस लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट हो रही है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट पोजीशन। और अगर हम बच्चों को इस एक्टिविटी के थ्रू समझा दें एक बार पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, तो बच्चा जिंदगी भर नहीं भूलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि बच्चा घर जाके खेलता है कि हम ये भी करेंगे, आप ये भी करेंगे। तो ये कुछ बातें थी आपकी पावर ऑफ अकोमोडेशन और आपके ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है। अब एक ये मैंने, देखिए आप लोग सभी ले सकते हैं इसको, बाकी सारा भी आपको बनाने के तरीके बता देंगे। एक ह्यूमन आई का मॉडल है, कुछ नहीं है, समझिए बॉल है, काट रखी है, आगे लेंथ लगा रखा है, ठीक है, छोटी फोकल लेंथ का, लगभग 8-10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, और ये पीछे एक पाइप है, इस पे लगा रखा है राइस पेपर, ठीक है। अब इसको ऐसा इसमें ये फिट कर दिया, ले भैया जा, चलो जी चली गई। अब ये हमारी बन गया ह्यूमन आई का मॉडल। इसे मैं 10th के बच्चे को दिखा दूं, इसे मैं 12th के बच्चे को दिखा दूं, इसे मैं 7th 8th के बच्चे को दिखा दूं, अगर उसने एक बार ये चीज सीख ली, जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, आप सभी एक काम को करेंगे, सभी अपनी एक बार आंखें बंद कर लीजिए, सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मम्मी खोल लीजिए आंखें। जैसे मैंने मम्मी बोला तो सबको मम्मी की शक्ल दिखी।
अपनी अपनी मम्मी की, ठीक है ना, क्योंकि हमारा माइंड पिक्चर्स में सोचता है। तो बच्चा जब होता है ना तो वहां से रटा हुआ नहीं आता, जब आप उसे दिखाएंगे वो देखेगा, उसको वो चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो वैसे ही हम पिक्चर्स में आपको दिखाने वाले हैं। ये ह्यूमन आई का मॉडल है। क्या करते हैं हम लोग, आपको पता है यहाँ लेंस है और आपको पता होना चाहिए रेटिना का काम करेगा, ये तो पता है सभी को, है ना। तो यहाँ अगर आपको इमेज दिखेगी, देखिए मैडम खड़ी है तो यहाँ से उल्टी दिख रही होंगी आपको, ये देखिए, लेकिन ये एक ही जगह शार्प दिख रही है। अगर मैं इसको थोड़ा पीछे ले लूं तब शार्प नहीं आएगा, थोड़ा आगे कर लूं तब भी शार्प नहीं आएगा। जो इमेज होती है अगर वो रेटिना पे बनती है तभी हम अच्छे से देख पाते हैं, अगर वो आगे पीछे चली गई तो हमारे लिए दिक्कत हो गई और यहीं से रोग बन जाते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, है ना। बच्चे को समझाएंगे हम इस चीजों से तो बड़ा अच्छा लगेगा बच्चों को भी और आपको भी, ठीक। ये कुछ एक्टिविटी है, कुछ छोटे से मॉडल थे। अब स्टार्ट करते हैं मेन एक्टिविटी, ठीक। आप में से कितने लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पता है? सभी को पता होगा वैसे तो, है ना। जब सर ने बोला था कि बॉल यहां से मारेंगे तो उधर जाएगी, है ना, सबको पता है। बच्चों को भी हम बता देते हैं, बच्चे याद भी कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को अगर हम क्लासरूम में ये चीज दिखा दें तो बच्चा ज्यादा अच्छा समझेगा। मैंने बोला ना माइंड हमारा पिक्चर्स में सोचता है, तो वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं। मैं इस शीशे पर लेजर से लाइट मारने वाला हूं और आप देखेंगे बड़े ध्यान से, इंटरेस्टिंग चीज है। आप मन में हटोगे, यही रहोगे, हाँ, क्योंकि पीछे वालों को दिख नहीं रहा। आप दिख रहा है? अभी मैं दिखाई नहीं रहा, अभी दिखाऊंगा। चलिए ये देखिए, कितने लोगों को आने वाली रेज दिख रही है? ये दिख रही है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी। दोनों ही दिख रही है? वेरी गुड। अब मैं आपको बात बताता हूँ। शीशे में जिस पॉइंट पर लाइट टकराती है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सबको मालूम है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये आने वाली रे होगी इंसिडेंट रे, जाने वाली होगी रिफ्लेक्टेड रे। अब हमने एक पढ़ा हुआ है बचपन से, आई बराबर आर, है ना। आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, ठीक। आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। और वो कहां से मेजर होता है, कहां से नापते हैं उस एंगल को? नॉर्मल से। वेरी गुड, नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री, सरफेस के 90 डिग्री, लाइक दिस। इस जगह पर एक ऐसा नॉर्मल बना होगा, इधर का ये एंगल हुआ एंगल आई और इधर का एंगल हुआ एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक डी भी खड़ा कर सकता था। आप लोग क्या करेंगे, अपने घर से शीशा लाएंगे, उस पे डी चिपका देंगे, लेकिन डी चिपकाना किस प्रकार से है? बिल्कुल परपेंडिकुलर, तिरछा नहीं होना चाहिए। मैं जानबूझ के नहीं चिपकाया क्योंकि मुझे आपको इससे कुछ और भी दिखाना है, ठीक है। अब देखिए दोबारा, ये देखिए, अब जैसे जैसे मैं इस एंगल को चेंज करता हूं, देखिए चेंज हो रहा है ना, ये इधर का चेंज होता गया। जैसे जैसे मैं इसे देखो कम कर रहा हूं आई को, तो आर भी कम होता जा रहा है, दिख रहा है? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और एक टाइम ये ऐसा आएगा यहाँ। कितने हो गए दोनों? 0 डिग्री, नॉट 90। नॉर्मल से नपता है एंगल, बहुत बच्चे गलती करके आते हैं इसमें, 0 डिग्री। तो ये हमें इसमें सीखने को मिला, और अगर हम बच्चे को ऐसे सिखाएंगे तो बच्चा बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे बढ़िया एक जुगाड़ मिल गया सीखने को, है ना, खेल मिल गया। और मैं आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जो 90% बच्चे गलती करते हैं उसमें सेकंड लॉ होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन पर होते हैं। अब सेम प्लेन इसे सोचते हैं हम लोग, क्या होता है सेम प्लेन? ये जो पीछे ये है, ये नॉर्मल अगर बनेगा ना, नॉर्मल इस तरीके से बनेगा, ये तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक प्लेन पर है ऐसे। अगर मैं इसे चेंज करूंगा ऐसे तो प्लेन ऐसे हो गया, देख रहे हैं? इसे ऐसे चेंज किया तो प्लेन ये हो गया। दिस इज प्लेन, जो हम बात करते हैं, खूब पढ़ते हैं कि प्लेन एक होता है, एक होता है, वो प्लेन ये होता है, ये ये समझ में आया? अब अगर हम इस एक्टिविटी को एक बार बच्चों को दिखा दें, एग्जाम में बच्चा पढ़ के भी नहीं गया तो वो क्या लिख जाएगा? दोनों लॉ वो लिख देगा, क्योंकि उसने देखी है, ठीक। चलिए, तो ये एक्टिविटी हुई आपकी रिफ्लेक्शन की। बात करते हैं अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। और आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा हुआ है किसी ने? पता है सभी को? जब लाइट क्या करती है? नाचने लगती है, हाँ, प्रिज्म से वापस आती है जब पार होती है। चलो खैर देखते हैं।
ये मेरे पास एक ग्लास का टुकड़ा है, बहुत बहुत महंगा है, सर का कहना है। क्या हम ये चेयर इसके ऊपर रख दें तो पीछे तक इजीली विजिबिलिटी बन जाएगी? कौन सी चेयर मैम? इसको यहाँ रख दे। नहीं मैं ऐसे दिखाऊंगा। अच्छा। अब मैं वो मिरर का। चलिए अब देखेंगे ध्यान से, फिर से अभी दिख रही है सही से आपको लोगों को? क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा कम दिख रहा है। सर तुम्हारी आंखों को तो चश्मा पहले से ही है। चलो देखेंगे ध्यान से, ये लाइट जा रही है इस प्रकार, है ना? अच्छा एक बात और सर धूपबत्ती दे दो इसके लिए। नहीं रहने दीजिए, दिख रही है सभी को? अगर क्लियर नहीं दिख रही तो धूप सामने से दिख रही है। दिख रही है, ठीक है। चलिए ये जो लाइट जा रही है, आपको दिख रहा है लाइट का रास्ता, इसको हम बच्चे को समझा सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना? प्रकाश का प्रकीर्णन आपने पढ़ा होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डस्ट पार्टिकल से चमका के लाइट विजिबल हो जाती है, लाइट का रास्ता विजिबल हो जाता है ना? तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है। अब देखेंगे लाइट हम पढ़ाते हैं, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, है ना? चलिए देखते हैं क्या स्ट्रेट पाथ पे चल रही है कि नहीं चल रही। ओ सॉरी आप मैं इधर बैठिए आप प्लीज। अब मैं इधर ध्यान रखूंगा थोड़ा। आपको दिख रहा है रास्ता? ये देखिए, लाइट का रास्ता सीधा है कि बेंड हो रहा है? बेंड हो रहा है ना? दिख रहा है? चलिए यहाँ का देख लीजिए, इधर वाला देख लीजिए, ग्लास के अंदर देख लीजिए। मैं इधर दिखा देता हूँ, कैसे दिखा देता हूँ। ये देखिए, दिख रहा है? दिख रहा है बेंड? अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट होता है क्या रिफ्रैक्शन? नहीं पास से मतलब वो आर पार हो जाती है। आर पार हो जाती है, वो रिफ्रैक्शन होता है। चलिए आप ध्यान से देखेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन नहीं होता। 97% केसेस में बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। सर दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो थोड़ी सी बैंड या फ्लैट हो जाती है, हमेशा वो जरूरी नहीं है। देखेंगे आप ध्यान से। अब बताएं क्या बैंड हुई? ग्लास में देखना, हवा में देखो, ग्लास में देखो, बैंड हुई क्या? अभी बैंड हो रही है क्या? अब बैंड हो रही है। हमेशा बैंड नहीं होती, तो क्या प्रश्न पूछा जाए क्या रिफ्रैक्शन हुआ? बैंड तो नहीं हुई, क्या रिफ्रैक्शन हुआ? हुआ। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाएगी रिफ्रैक्शन होता है। तो बैंड क्यों नहीं हुई सर? पहले तो बैंड हो रही थी। और बेंडिंग के भी वो लॉ बने हुए हैं कि डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल है ना? ये सब हमने पढ़े हुए हैं। लेकिन वो जाती क्यों है ये भी आप लोगों ने समझना होगा। चलिए खैर, अब ये डायग्राम ना अब सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में और आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम में खूब पूछा जाता है। 2 नंबर में, 3 नंबर में बच्चा रट लेगा, बना देगा, पीक्यू, इंसिडेंट रे, आरएस पर बना देगा दुनिया भर की चीजें, लेकिन उसे समझ में नहीं आएगा। आप जब दिखाओगे समझ में आएगा। ये देखेंगे ध्यान से, फिर हम इसमें पढ़ाते हैं लेटरल शिफ्ट। देखेंगे ध्यान से, ये देखिए, दिख रहा है क्या? जो इंसिडेंट रे है ये वाली और जो इमरजेंट रे है ये वाली, क्या ये दोनों एक ही रास्ते पर है? देखो ध्यान से कि थोड़ा अलग है, अलग हो गए ना? लेकिन ध्यान से देखोगे तो दोनों पैरेलल हैं। ये वाली रे इंसिडेंट रे और जो इमरजेंट रे है दोनों आपस में पैरेलल हैं। देखिए ध्यान से, है पैरेलल कि नहीं है? ध्यान से देखो, अगर आप सिर्फ ध्यान से देखेंगे आपको पैरेलल नजर आएंगे। देखिए दिख रहा है? इसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। हमने बच्चों को सिखाया भी होगा बना के, तो लेकिन अगर हम उसको दिखाएंगे तो वो समझेंगे। क्लियर? क्लियर है सभी को? और फिर वो थिकनेस के साथ वेरी करता है, थिकनेस बढ़ेगी तो बढ़ जाएगा, घटेगी तो घट जाएगा, ये सब आप लोगों ने सीखा हुआ ही है। अब एक मेरे पास यहाँ है प्रिज्म। प्रिज्म कैसा होता है सभी को पता है ना? यस सर। पता है सभी को? यस सर। कैसा होता है? ट्रायंगल शेप का होता है। हाँ चलो पिरामिड, हाँ चलो ठीक है। प्रिज्म में 5 सरफेसेस होती हैं और 5 फ्लैट सरफेसेस होती हैं, जिसमें 2 होती है ट्रायंगुलर और 3 होती है रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये प्रिज्म हो गया। प्रिज्म में लाइट कहाँ जाएगी? अगर हम प्रिज्म में लाइट डालते हैं तो लाइट कहाँ जाती है? फिर वापस आएगी। हाँ बताइए। स्कैटर्ड हो जाएगी। स्कैटर्ड देखो अभी भी हो रही है, ये देखो ये स्कैटर्ड ही हो रही है, हमें डायरेक्ट रास्ता दिख रहा है ना? स्कैटर्ड का मतलब होता है जब
लाइट टकरा के चारों दिशाओं में फैलती है, इससे टकरा के। जैसे हमने कहीं टोटी खोल दी, पानी निकल रहा है। अब देखो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ। आपने टोटी खोली, नल से पानी आ रहा है, अब उसमें आप 3 काम करिए। पहला काम, एक पतली सी झाड़ू की सीख लगाइए, ठीक है। दूसरा काम, एक थोड़ी आइसक्रीम की स्टिक लगाइए। तीसरा काम, एक कुछ क्या लगाएंगे, फोम लगा दीजिए। तो क्या हो रहा है तीनों में? क्या एक ही काम होगा, अलग अलग होगा? अलग होगा ना। जो बहुत पतला है यानी कि झाड़ू की सीख, पानी उसमें से सीधा सीधा निकल जाएगा, बहुत कम फैलता है, लेकिन ज्यादातर सीधा निकलता है। आप जब आइसक्रीम की स्टिक लगाएंगे तो फैलेगा और ज्यादातर सीधा जाएगा, फैलेगा ज्यादा। जैसे पहले बिल्कुल नहीं फैल रहा था, अब थोड़ा ज्यादा फैलेगा, लेकिन ज्यादातर सीधा जाएगा। और जब लगा देंगे फोम, एब्जॉर्ब होगा। फोम के टुकड़े में एब्जॉर्ब ज्यादा होता है। रिफ्लेक्शन पानी टकरा के आएगा भी, लेकिन एब्जॉर्ब ज्यादा होगा। वो चीज यहाँ पे दिखती है, आप लोगों ने देखी हुई है। जैसे कि अगर मैं अभी सामने मार रहा हूं तो वो क्या रहा है, यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल हैं बहुत छोटे हैं, उनका साइज लाइट की वेवलेंथ के लगभग ऑर्डर का होना चाहिए, सब आपने पढ़ा होगा। तो इसलिए लाइट चारों दिशाओं में फैल गई। आपको यहाँ दिखा हरा, यहाँ भी हरा, यहाँ भी हरा, लेकिन ज्यादातर लाइट कहाँ जा रही है, सीधी। तो ये होती है स्कैटरिंग। ऑलराइट, चलिए अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये है प्रिज्म। अब प्रिज्म से हमने खूब खेल खेले हैं, इंद्रधनुष बनाया है, रेनबो बनेगा, बनाया होगा, सबने देखा भी होगा। हाँ, बनाना कभी आप लोग। प्रिज्म में जब लाइट डालते हैं तो वो कहाँ को बेंड होती है? बेंड होती है तो पता है ना, लेकिन क्या बेंडिंग का मतलब रिफ्रैक्शन है? नहीं, ध्यान रखिएगा, बेंडिंग का मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होता। लाइट का एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे में जाना ही रिफ्रैक्शन हो गया। बेंड होगी नहीं होगी बात की बात है, वो क्यों होती है मैं अभी आपको बताऊंगा। आपको अगर भूल जाओ तो बता देना। ध्यान से देखेंगे, ये प्रिज्म है, मैं इस पर लाइट डाल रहा हूं, लाइट दिस। अभी तो नहीं डल रही, ये देखिए कहां गई, ऊपर भी जा रही है, बिल्कुल जाएगी, ऊपर भी जाएगी। चलिए देखिए ध्यान से, यहां सामने से देखिएगा, जो लोग को दिख रही है प्रिज्म के अंदर दिख रही है बेंड होती हुई। फिर कहां दिख रही है प्रिज्म के बाहर? नीचे जाती हुई, नीचे जाती हुई दिख रही है। ये देखिए, दिख रही है। उधर वालों को शायद रोशनी आ रही है ना, नहीं दिख पा रही। चलिए ये देखिए, मैं ऐसे दिखाता हूँ। किसी के हाथ पे रख सकती है, अपने हाथ पे। ये देखिए, दिख रही है, दिख रही है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो लाइट बेंड होती है, अब कहते हैं कि नीचे को बेंड होगी, प्रिज्म पे जाएगी तो नीचे को मुड़ेगी। क्या जरूरी है? काम को मुड़ेगी। अच्छा, क्या हम एक इसके लिए कोई शब्द यूज कर सकते हैं? कंडीशन होगा, जैसे प्रिज्म है वो डेंसर हो जाएगा, एंड एयर इज रेयर, तो टुवर्ड्स द फिर देन अवे ऐसे करके होगा, तो इसीलिए वो नीचे की साइड में बेंड कर रही है। वेरी गुड। क्या हाँ, उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन क्या कोई शब्द हो सकता है जो मैं यूज कर सकता हूँ? एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी प्रिज्म आपका, जो मैडम बोल रही है डेंसर वगैरह, अब ये सब चीजें मैं आपको नहीं बता रहा, तो मान लिया डेंसर है, हमेशा जो लाइट होगी वो बेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ बेंड होती है। अगर प्रिज्म डेंसर है, कहां बेंड होती है? बेस ऑफ द प्रिज्म। बेस, आप देखेंगे ध्यान से, मैंने प्रिज्म को ये पकड़ा है और लाइट डाल रहा हूं इस तरीके से, ऐसे, ठीक। ये देखेंगे ये कहां बेंड हुई, अब ये बेस है, उधर बेस है, इधर ये होता है बेस। अब सर बेस तो नीचे होता है, हमने पढ़ा है, ये ऊपर कैसे हो गया? बेस का मतलब समझे, क्योंकि बच्चों को हम लोग जो एक बार किताब में बनाया हुआ है ना कि बेस नीचे है, तो बच्चे के दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। बेस नीचे हो ऐसा जरूरी नहीं है। बेस कहां होता है? जब भी आप लाइट डाल रहे हैं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए लाइट ऐसे जा रही है, ये अगर लाइट के रास्ते में प्रिज्म ना होता तो लाइट का रास्ता ये है, और जैसे ही मैंने ऐसा प्रिज्म रखा, ये कहां गई? बेस की साइड। अब सुनिएगा, जैसे लाइट अगर जा रही थी, देखिए ये ऐसे जाती तो ये ऊपर जाता, यहां से रे जा रही, इधर जा रही, तो ये आया एक वर्टेक्स, दिख रहा है सामने से ट्रायंगल का एक वर्टेक्स, नीचे है 2 वर्टेक्स, ये जो सरफेस बन रही है इसे बेस बोलेंगे। लाइट को देखो कहां जा रही है, उस
वो जो लाइट जाएगी वो जरूर आपके प्रिज्म को, जो सामने ट्रायंगुलर सरफेस है, उसमें एक वर्टेक्स और दो वर्टेक्स में बांटेगी। जिस तरफ दो वर्टेक्स हुए, नीचे वाली सरफेस होगी बेस, जिस भी तरफ दो वर्टेक्स होंगे। अब देखिए मैंने पहले केस में क्या किया था, देखेंगे ध्यान से, ऐसा कर लेता हूं मैं, ये देखेंगे आप लोग, ये देखिए। अब देखिए अगर रे सीधी जाती तो कहां कट करती, ये रे सीधी जा रही तो नीचे एक वर्टेक्स आया, ऊपर कितने वर्टेक्स दिख रहे हैं ट्रायंगल के, अगर सामने से देखोगे तो दो, तो बेस क्या हुआ ऊपर, इसलिए बेस की ओर बेंड होती है। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, बच्चों को अगर हम ये बताएंगे ना तो बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। सिर्फ हमेशा ये मत ना रख ले बच्चा कि नीचे को बेंड हो, इसका भी ध्यान रखेंगे हम लोग। अब मेरे पास दो प्रिज्म है सर, अब क्या होगा अगर दो प्रिज्म यूज कर लें, यही पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। अच्छा एक बात और, अगर मैंने लाइट को जहां भी बैंड हुई प्रिज्म पे डालने पे, वो कहां से बैंड हुई, इधर से डाला बैंड हुई, इधर से डाला, हाँ सर बैंड हो रही है, इधर से डाल रहा हूं फिर भी बैंड हो रही है, क्या मैं इधर से डाल के बैंड होगी क्या, नहीं, बैंड नहीं हो रही। बैंड सिर्फ रेक्टेंगुलर सरफेस से होती है प्रिज्म पे, ध्यान इस बात का रखिए।